अस्सलाम वालेकुम नज़र चौहान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ 18 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਕਬ ਵੀਲੌਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ रहा हूँ। दरअसल ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲੌਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਲੌਗ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਂਥੇਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਉਹ PhD ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀਲੌਗ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਬੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮਨਸੂਬਾ ਗੋਰੇ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਵਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ 40 ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਲਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਹੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ, MQM ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ PIA ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਔਕਾਫ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੂਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਹਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਅਵਾਮ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡਗੈਸਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਡਿਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੰਚ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਪਾਲਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर द सेटलमेंट। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਦੇ ਟੇਕ ਦਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਿਫਟ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹਲਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਦਰਚੋਦ ਸੂਅਰ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਮੇਜਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
जो हालात बन गए हुए है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਥੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਟੂ ਥੀਸਿਸ ਆਫ BS ਐਂਡ MPhil ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ PhD ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, BS ਐਂਡ MPhil ਇਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਰਾਊਂਡ ਪੈਂਥੀਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I am an assistant professor of philosophy in a public sector university. I really like your pantheistic explanation. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ। ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਟੋਇਸਿਜ਼ਮ, ਪੈਂਥੀਜ਼ਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੇਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ। दैट इज द थिंग, देयर इज नो रिलीजन, नथिंग, देयर इज नो फेथ, देयर इज नो नजरिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अगे चलते हैं। हमारे नाम मेरा बेटियां दी तरह है, बहुत खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत दिल वाला, न्यूयॉर्क एग्जाइल ते रहिंदा है। हम टीवी ते प्रोड्यूसर सी, सदीक जान वगैरह दा बड़ा दोस्त और हल्का है बाप दा आदमी, उसी साइड दा सराइकी। न साहब, मैं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों इंसानों से मिला हूँ, लेकिन आप जैसा शफाफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हम में से हर कोई मुआशरे और गैरों पर तो बात कर सकता है, लेकिन अपने वालदैन, बच्चों और बहन भाइयों पर गुफ्तगू का हौसला मैंने दुनिया भर में सिर्फ आप में देखा है। जिस तरह आप ज़ाती या फैमिली की कमी कोताहियों को अवामी तौर पर डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ एक सच्चा रूहानी शख्स ही कर सकता है। आप एक साफ आईने की तरह हैं, जिसमें मुझ समेत हर कोई अपना आप देख सकता है। मेरा टू यू, मादा परस्ती के खिलाफ आपका जहाद हम जैसों को अल्लाह दुनिया की भेड़ चाल से हटाकर अल्लाह की तरफ ला रहा है। आपने सबसे पहले मादा परस्ती के खिलाफ खुद मसाल कायम की और फिर औरों को दर्स दिया। ये आदत नापैद हो चुकी। काबुरा मक्तन इंदल्लाहि अत्काकुम, काबुरा मक्तन इंदल्लाहि, ठीक है जी। अच्छा, अल्लाह करीम आपके हो चुकी है। काबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, जो आप कहें उस पे अमल ना करें। अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कुरान पाक की है। अल्लाह करीम आपके भाई जो जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और आपको सब्र से नवाजे, आमीन सुम आमीन। वेरी गुड मैसेज, आई रियली लाइक उमर। ताहिरुल कादरी कनाडा में जवान औरत से शादी, $500 मिलियन का घर, छापों से बचता है। मुरीद के लाहौर में झाड़ू, मुरीद लाहौर में, सॉरी, मुरीद लाहौर में झाड़ू लगाएं, वो बरकत बेचता है। ये कैसे खुदा से मिलवाता है? हिपोक्रेसी। उमर नाम, दिस इज़ द कंट्रास्ट। मेरे टीचर रहे हैं ताहिरुल कादरी, बिटवीन नज़र चौहान एंड ताहिरुल कादरी, या बाकी जड़े मौलवी जड़ा मैं कहता है कि मस्जिदां बंद हो जानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, वो तो बात तो हिल जाता थोड़ा जिहा मेरे तो ना। अच्छा जी, अच्छा, दूसरा कमेंट सी, बिल्कुल सही भाई साहब, सलाम अलैकुम, बिल्कुल सही, ख़त्म कर दिया पाकिस्तान, नहीं निकलेंगे, पाकिस्तानी बचेगा ना खान बचेगा। देख लेना, पूरा पाकिस्तान निकलना चाहिए फ़ौज के ख़िलाफ़। इनसे जान छुड़ाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। कोई नहीं निकलेगा मादर चोद सूर फ़ौज के ख़िलाफ़, एंड यू विल बी ऑल डेड। ये नेचुरल प्रोसेस है। ਇਹ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੋ ਔਰ ਬਚ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਗਾ ਸਰਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ लियाकत घुम्पल ने मरहूम की पीपल्स पार्टी से दरीना वाबस्तगी थी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जरदारी कैंप ज्वाइन किया और फिर लंबे हाथ मारे, बड़ा माल बनाया। मरहूम के घर में छापे में एक बार इतनी दौलत सामने आई थी कि पूरा मुल्क हैरान रह गया था। मरहूम के पास नायाब गाड़ियों और बंदूकों का भी एक बड़ा ज़ख़ीरा था। मरहूम शराब व शबाब के रसिया थे। सारी ज़िंदगी झूठ, मकर और फ़रेब पर बसर की।
हमेशा ज़ालिमों के साथी रहे, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के लिए हमा वक्त दस्तयाब रहे, पूरे सियासी करियर में मुनाफ़क़त की सियासत की, ठीक है जी। इन पर लूट मार के बहुत से मुकदमात बने मगर कभी सज़ा ना मिली। आज इस अदालत में पेश हो गए जहाँ जीएचक्यू से फ़ोन नहीं आता, जहाँ जज नहीं बिकते, जहाँ रिश्वत नहीं चलती, दौलत जो जमा की ज़ालिम गिरोह का जो साथ दिया, कोई उनके काम नहीं आएगा। यही हकीकत है, यही आखिरी मंजिल है। हर ज़ालिम और मुनाफिक को खबर हो कि एक दिन तुम भी इसी अदालत में पेश होगे और तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मैं लियाकत साहब ने आगा सराज दुरानी दी डेथ ते लिखिया और मेरी माँ कहती हुंदी सी ये मरण तो नहीं डरते, ठीक है ना जी, इन्हां नूं मरने तो डर नहीं, ठीक है ना जी। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਵਾਰਪ 111 ਕੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਲੌਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕਿ ਵੀਪੀਐਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਪ नॉट 111 सॉरी 1111 ये वाला वीपीएन यूज़ करो बेस्ट है नो बफरिंग। मैं भी ट्राई करांगा अगर मैं भी वीपीएन ਦੇ ਥਰੂ ਵੀਲੌਗਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਆਈਲ ਟਰਾਈ ਲੇਟਰ यार मैं ਅੱਗੇ ਹੀ बहुत ज़्यादा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ठीक है जी। अच्छा जी, मैं मौत के शहर का सागर पीकर बहुत खुश हूँ कि ये ज़िंदगी ज़हर की प्याली थी लेकिन मैंने खुद कशी नहीं की। फ़कीर कभी खुदकशी नहीं करता साहिर सिद्दीकी। मर के बिना चैन पाया तो किधर जाएँगे। नो, 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 बिल्कुल नहीं। तुम एक गोरख धंधा हो नाज़ ख़यालवी हैं। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो जाने किस जुर्म तमन्ना की सज़ा देते हो। कभी किंकर को बना देते हो हीरो हीरे की गुत्थी कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई तूर ही बन के तजल्ली से जला तूर ही बन के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में आखिर कार शय मिस्र बना देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक दिन गंवा बैठता है अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। वो जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात मेराज करवा देते हो। ये मैं अज नुसरत फतेह अली खान दी जुबानी बड़ा तुम्हें गोरख धंधा बड़े लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं तो इसलिए पढ़ के सुनाया मेरे रूहानी मन तक ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ ਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੇ ਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਡੇ ਹੈ ਹੇਅਰ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फलसफा है। मैं आपको जावेद साहब एक मैसेज लिखते हैं मैं आपको उस वक्त से देख और सुन रहा हूँ जब आपके सब्सक्राइबर 14,000 होते थे। यस काफ़ी देर है 14,000 रहे सी। आपका सच्चा और सुच्चा अंदाज दिल को बहुत भाया और फिलबदी पंजाबी गालियों के तो क्या ही कहने। आपकी सोल अनमोल है हर एक दी है सर जावेद साहब और सादगी में ज़िंदगी की भरपूर आमादगी पाई जाती है। मोहब्बत ज़िंदगी और इंसान को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी ने क्या खूब कहा था कि सिर्फ एहसास की नज़रों से ही महसूस को हाथ से छू कर उसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। गाना है सिर्फ एहसास की नज़रों से ही महसूस को हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। मैं हमेशा कहता हूं चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं डोंट डिस्क्राइब दैम। हाँ जब नाम देने की बात आती है तो आपसे बेहतर
कौन कैसे नाम दे सकता है? आपका दिया हुआ एक नाम मनीरा मिस्त्री तो इस कबील का शाहकार और ज़ुबान ज़िद्द-ए-आम है। नवाज़ कांडा, हैं जी? नानी गश्ती 420, शोभा स्टील किलानवाला, हैं? बिल्लो मोरी। बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा, फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ मज़ीद कलम तो सी के खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो आपकी इंसानी रूह का सताइश। मैं भी जी जावेद साहब आपकी एक्चुअली पिछे जे मेरे मैं बड़ा लोगों नाल नाराज़ भी होया जिन्होंने लोगों ने मेरे भाई ते कंडोल नहीं किया। निराला स्वीट वा ओ निराला एक गड्डियां दा काम करदा हरामजादा कोई दल्ले दा बच्चा शहबाज गिल दा रिश्तेदार है। गंदे पैसे शहबाज गिल दे ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ खुदा है। अच्छा जी, इसकी महफिल में बैठ कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मेरे नाल जिन्हों ने मेरे भाई की डेथ ते कंडोल किया दे आर माई फैमिली नॉट अदर्स, दे आर नॉट माई फैमिली। वो तमाशबीन है जरा मेरे भी लोग देख रहे हैं। वसाले यार की कलियों से मुश्कबू होकर नहीं हो होश में अब आपसे मैं तू हूँ। वसाले यार दा रोज़ा रखते होंगे सी शाह शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूमी 72 घंटे कहते हैं कि 72 घंटे इंसान सिर्फ पानी ते जी सकता जना। वसाले यार की कलियों से मुश्क दूर होकर नहीं हूँ मैं होश में अब आपसे मैं तू होकर। अभी नकाब उठाओ ना अपने चेहरे से जरा सा ठहरो मैं आता हूँ बावजू होकर। एक्सपेंशन इफ यू आर सो जावेद साहब सो क्लोज टू मी वो मैं और जावेद साहब अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शाह शम्स तब्रेज़ और रूमी ने की थी, माधोलाल हुसैन ने की थी, उन्हें सरमद और चांद ने की थी, महमूद अयाज ने की थी। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। वो देती जो लामकां है मकीं कोई भी नहीं है हाँ, फल के पार से आई है जस्तजू होकर। वो लामकान दा मैं तुहानू दसिया ओदा लाल शहबाज दा जेड़ा सी है कौनो मकां तो बाहर जो हम पे गुजरी है आकर जहान बातिल में बताएंगे तुझे महशर में रूबरू होकर। जमीन ढूंढने भेजा था जिसको कश्ती से परिंद लूट के आया लहू लहू होकर। ज़बान मुर्शद कामिल में जो फसाहत है पता चलेगा तुझे महवे गुफ्तगू होकर। ज़बरदस्त जी। वैसे मैं ते जावेद साहब अपना ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲੀव नहीं करता। इक्वैलिटी ते यस वी ऑल आर गॉड्स। नात का एक खूबसूरत शेर उन्होंने इन्हों किया पाँव का ताश पुल गिरा देता है तो सोच का ताश पुल बना देता है। पाँव का ताश जमीन हिला देता है तो सोच का ताश दिल हिला देता है। ठीक है जी। फिर वो तो बाद तो जनाब साहब एक कनाडा तो मेरे दोस्त ने वो मेरे भाई के अफसोस के वक्त उत्थे नहीं सी बेचारे किते गए सी टोरंटो तो बाद उन्होंने इस कौम के पागलपन बताए। पागल नंबर एक पागल नंबर एक करोड़ों रुपए की हिफाजत के लिए बैंक 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर गार्ड रखता है। पागलपन नंबर दो अनपढ़ कौम के लिए टैंकर पे बचाव की हिदायत अंग्रेजी में लिखते हैं। पागलपन नंबर तीन सड़क पहले बनाते हैं फिर उसे खोद कर बिजली गैस की लाइनें बिछाते हैं। पागलपन नंबर फोर मस्जिदों से बिजली के बिल में टीवी लाइसेंस की फीस वसूल करते हैं और मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पागलपन नंबर पाँच हादसात में मरने जलने वाले के वर्षों को करोड़ों बांट देंगे मगर हादसात की रोकथाम सजा जजा और इमरजेंसी से निपटने पर टका खर्च नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा वो तो बात तो जी
पागलपन नंबर 6, खुद कर्जे पे कर्जा लेते रहते हैं और आवाम को बचत स्कीमों की तरगीबें देते हैं, खिलाड़ियों को लाखों रुपए घर बैठे देते हैं। पागलपन नंबर 7, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, रबीउल अव्वल, 11वीं, शादी ब्याह सब इस्लामी चांद देखकर मनाते हैं और ईसवी साल के आगाज पर इतनी खुशी का इजहार करते हैं कि ईसाई भी हैरत ज़दा रह जाते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। रूमी साहब ने, मौलाना रूमी साहब ਦਾ कॉल भेजिਆ ਸੀ डॉक्टर नजीब ने, एवरीवन हैज़ बीन मेड फॉर सम पर्टिकुलर वर्क, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ अपनी मखलूक की खिदमत करवा, खिदमत नॉट इन सेंस ऑफ चैरिटी, खिदमत इन सेंस ऑफ कोई भुलाई का पैगाम किरदार के थ्रू, जिस तरह जावेद साहब, उमर इनाम वगैरह ने दसिया, मैं उहदे च कामयाब, ठीक है जी। फिर आखिर च अगेन उन्होंने डॉक्टर नजीब रूमी का अपना बड़ा अच्छा सी, क्रिएट योर ओन रियलिटी, तुसी एक अपनी हकीकत क्रिएट करो बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रस्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ, यूनिवर्सल ट्रूथ ਨੂੰ डिस्टॉर्ट ਕੀਤਾ मसाहिब ने। there was universal truth in nature, in God, in heart, ਜਿਹਨੂੰ डिस्ट्रॉय ਕੀਤਾ रिलीजन्स ने ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बी flawless, कोई फ्लॉ नहीं, flow don't go with flow, divine and devil are not in holy stones, अजरे असवद, लात मनात, हिंदुआं दे दियां मूर्तियां, but inside of our souls, साडी रूह दे अंदर। first find it, then mind it, don't search for hell or heaven in future, कोई जन्नत दोज़ख नहीं है मुस्तकबिल च या किते उत्ते, राइट इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं हैवनली जिंदगी गुजार रहा, अच्छे अमाल किते होंगे, रोशनी की तलाश रहा होंगे। अगर तुसी जहन्नम की जिंदगी गुजार रहे हो, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज, तो गुनाह किया होएगा, अल्लाह ताला उसकी सजा दे रहा, ठीक है जी। बोथ आर हेयर राइट नाउ। कल तक ली इजाजत, अल्लाह ने।